So, good morning, class. How are you, class 9? Hope all well. Ready for your English periodic assessment 1? Okay. Now, in this video, you are being guided for your grammar section, right? How to go about your grammar section. My doll, she's always with me. She says hi to everybody before we start our grammar section. As you all know, first is let me hold it very tightly. Is it okay? Yes. First is your question on omitting. Some of you, please take a click also. It helps you to see again and again. In this omitting, now you know this paraphrase is given. You have to read out this paraphrase and then find a word which is missing in each line. There is a word which is missing in each line, and that is the correction you have to make. In every line, there is one error, there is one mistake, and that error only will fetch you half mark or lose half mark. 4 marks question comes in examination. Complete 4 marks question comes in the examination. 8 lines paragraph. Try always there, but always answer separately. As you see in this worksheet, you can see sir has made it A, B, C, D, E, F, G, H. In one line A, for second line B, for third line C, and so on. Got my point? This is the thing in omissions, right? So you have to just read the paragraph, find there is one mistake, jot it down, right? Otherwise, when we write it, the answer should be in the middle row. Means A, B, C, D, you make A before, between, after. You did this in class 1, class 2, before, between, after. Bas. You write the heading and the between one is your correct answer in that row. Between, underneath, between, whatever is there, your examiner will give you marks according to it. Means you will be examined. So just read this paragraph. Wright and Fleming found out that treatment being used was doing more harm good. Full stop. एकदम पता चल गया कहाँ गलती है. ठीक है.
कैसे पता चला? डूइंग मोर हार्म ज़्यादा कर रहा है गुड से, हार्म गुड। तो हार्म और गुड के बीच में एक वर्ड मिसिंग है। हम तुरंत वहाँ स्लैश लगा लेते हैं, डंडा खींच लेते हैं, स्लैश ले लेते हैं। देखो ओमिटिंग के साथ ब्रैकेट में सर वहाँ लिखा हुआ है, जहाँ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ओमिटिंग स्लैश लिखा है ब्रैकेट में, वो स्लैश यहाँ लगाया जाता है। जैसे मोर हार्म दैन गुड, यहाँ दैन THAN, जब दो की तुलना करते हैं, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, तो उसमें दैन लगता है। ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइट, ये हमारे ल्यूकोसाइट ब्लड में होते हैं, दैन टू द जर्म्स, and some cases the antiseptic actually facilitated multiplication germs, full stop। साफ पता चल रहा है क्या क्या मिस्टेक है? आप ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा एकदम। तो तीसरा सेंटेंस कहता है, राइट एंड फ्लेमिंग इंसिस्टेड, जोर देकर किसी बात को कहना, इंसिस्टेड दैट द सर्जन्स एम, डॉक्टर का उद्देश्य, बी नॉट मच टू किल द जर्म्स, बी नॉट मच टू किल द जर्म्स as to help the leukocytes to do natural germ killing work। थोड़ा सा लगाओ अभ्यास, ओके, करो टेक्स्ट, माइंड को शुरू हो जाओ। सो इस तरह से आंसर्स लिखेंगे आप बीच में, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप लिख देंगे बिफोर, यहाँ लिख देंगे बिटवीन, और यहाँ लिख देंगे, जिससे आपको पता रहे। ये जो बिटवीन वाले होते हैं, वो जो वर्ड आप यहाँ जो लगाएंगे वो पता चल जाता है। ये करेक्ट वे आंसर करने का है, ओमिशंस को, ओमिटिंग को। आई थिंक नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है ना? यस, एक में बनाया वो बिल्कुल ही हिलता 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 आ रहा है, पता नहीं। आई थिंक अब तो ये बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन गलत पॉस्चर है मेरा जहाँ मैं बैठा हूँ। आई शुड गो ऑन द टेबल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, एडिट द फॉलोइंग पैसेज। नाउ देयर इज one mistake here also, but that mistake you have to edit it. Underneath you put the line, whatever word it is, and write the answer on the blank side, or you write A, B, C, D. The same procedure you follow, same method. Many people have grown up in multi-child families। अच्छा जी, many people have grown up in multi-child families। बहुत सारे लोग मल्टी चाइल्ड, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे रहे परिवारों में, जिनके परिवारों में ज़्यादा बच्चे रहे, वहाँ ज़्यादातर लोग बड़े हुए हैं। वो क्या सोचते हैं? थिंक दैट सिंगल चाइल्ड फैमिली इज अ फॉर्चुनेट वन। उनका सोचना है कि एक बच्चा जिस परिवार में
वो किस्मत वाला परिवार है। एक वर्ड यहाँ ढूंढ के लगाओ। क्या ऐसा लगता है तुम्हें? दे मेंशन सच बेनिफिट्स। अब यहाँ देखो, लैक ऑफ कंपटीशन, पेरेंटल लव इन सच फैमिलीज, राइट। फिर देखो हर वर्ड मिस है एक जगह, ठीक है। स्लैश लगाओ, वहाँ स्लैश लगाइए, सोचिए कौन सा वर्ड मिसिंग है, और एक वर्ड हर एक में मिसिंग है। हिंदी थोड़ी बता देते हैं, इसमें तो हिंदी का भी कोई फ़ायदा नहीं बताने, क्योंकि वो प्रेपोजिशन हैं वो जो लगने हैं। इजी है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग द ईच ऑफ द चिल्ड्रेन possesses large wardrobe for keeping his her clothes। उनके मुताबिक हर बच्चे के पास एक एक बड़ी अलमारी है, अपनी बड़ी अलमारी है, वार्डरोब है, अपने अपने कपड़े रखने के लिए। चाहे वो लड़का है, सिंगल चाइल्ड फैमिली, चाहे वो लड़की है। बहुत हैं आज के ज़माने में जिनकी फैमिलीज में सिंगल चाइल्ड, राइट। और वो कह भी रहा है आजकल तो वैसे फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनके परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा है, राइट। यू विल अंडरस्टैंड क्यों कहते होंगे, राइट। बट उनका ये फ़ायदा है, वो बोलता है कि एक बच्चे के बाद अपनी एक कपड़े की अलमारी है पूरी की पूरी। बट पिक्चर इज़ नॉट सो रोजी। पर ये कहने की बातें हैं, इतनी बढ़िया बात नहीं है। नॉट रोजी मीन्स कोई ख़ास पिक्चर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग दी चिल्ड्रन वेरी लोनली एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। सब कुछ होते हुए भी ना इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। ये हर समय संगत चाहते हैं, अकेले रह रह के थक गए हैं, राइट। बिल्कुल लोनली हो चुके हैं, अकेले रह रह थक गए हैं। इनको भी एक चाहिए, कोई ना कोई कंपनी के लिए चाहिए। ये मीनिंग है। बट हर एक में एक सेंटेंस, एक वर्ड मिसिंग। मिसिंग की जगह स्लैश लगाओ। स्लैश लगाकर वो जो मिसिंग वर्ड है आप ABCD जैसे ऊपर बताया है, ये देख लो, ABCD लिख लीजिए और उसमें आंसर कीजिए। एंड एक पैसेज और भी है, देखो। एडिट द पैसेज, एडिट द पैसेज। वाटर is the basis, BASES, basis of life, all life. Every animal and each plant contains a substantial proportion to free and combined water for its body, and so kind of physiological activity is possible in which the fluid do not play an essential part. What is necessary in animal life when moisture in the soil is equally imperative in the life and growth of plants and trees. Of plants and trees में कोई गलती नहीं होगी,
तो कोई ब्लैंक ही नहीं लगाएंगे आप। पेड़ और पौधे, कोई गलती नहीं है, राइट। या है एडिटिंग, एडिट करो इसे। हर लाइन में एक दो जो गलती है, जैसे पढ़ते सारी पता चल गया, ज़िंदगी का बेसिस कहना था उसने, वहाँ आई होना चाहिए था, उसने एसिड बेसिस सॉल्ट वाला बेसिस डाल दिया। आई समझ, ये एडिट करना होगा। अंडरलाइन किया, आंसर है BASIS, बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। ठीक, तो ये ए वाला चलो मैंने आपको बता दिया सपोज। अब ऐसे थोड़ा दिमाग लगाइए इसको, ओके। इसको क्लिक कर लीजिए ऐसी, राइट। और उसके बाद इसको बैठ के पिक से दिमाग लगाइए। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है आपने, ये सारा काम जो है आपने कर लेना है जल्दी। एक क्वेश्चन और है जिसको हम कहते हैं रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स। ये क्या है? रीअरेंज द जम्बल वर्ड। देख लीजिए, आ रहा है, करेक्ट दिखना चाहिए, करेक्ट दिखना चाहिए। Rearrange the jumbled words and phrases into meaningful sentences. They, the, happy, wish, you, returns, many of, right? Or maybe. Chalo, this is the thing. I'm sorry, that is already solved. So do this practice and you can have one practice of your, what you can say, jumble words from anywhere. Okay, best of luck. Thank you.